sensitive to taxpayers' issues and always willing to mentor and guide. Before joining IRS in 1982, he had started his career as an advocate in Delhi High Court, and now, after long tenure of his government service, he is back to his original innings as an advocate. He is into tax consultancy and is a part of professional fraternity. Because of his knowledge and competence, he is a source of inspiration to all of us. He is a true friend, a guide, a mentor to all professionals and taxpayers. He is presently member in the Audit Advisory Committee of C&AG for Western Region. He has vast experience of training and a regular speaker on tax-related issues in various forums. Besides, he is a spiritual counselor and a guide to many seekers all over the globe. He conducts regular sessions on Who Am I and self-realization. His spiritual talks on meditation and self-help subjects are available on Dr. H.C. Jain Virtual Gnan YouTube channels. He has also authored and or co-authored various books on art, culture, history, literature of Rajasthan and of India, as also on world history. We are pleased to have him amidst us to share his wisdom. Today he will be talking on You Are the Architect of Your Life. I'm sure you are all too eager to listen to him. I present to you Advocate Dr. Hukam Chand Jain. Sir, the mic is all yours now. Yes, sir. Please unmute. Good evening. Yes, you can start. Good evening. Good evening, sir. My voice is audible? Little louder, sir. It is louder? Yeah. No. Little louder. Please speak louder. No, speak louder, sir. Okay. Just see now. It's okay? Hello? Okay. Yeah. Now it is fine? It's fine, sir. Okay. Absolutely fine. Okay. District Governor-elect Lion Prasad ji, Pawan Agrawal ji, and all the members of Lions Club present here, all members of fraternity, other distinguished participants here, I extend a very hearty welcome to all of you. I am thankful for the kind introduction, the good words spoken for me. And आज का topic है, I was told that I'll be speaking it in a mixed language, Hindi and English, so that it is received well. Because the basic spirit of communication is that it should be communicated. So आज का topic है कि आप अपने destiny के, अपने जीवन के स्वयं शिल्पी हैं. You are the architect of your life. इसको हम ऐसे लें कि आज तक जो भी मेरी स्थिति है, मेरी मनोदशा, मन स्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरा परिवार, मेरे संबंध, मेरा पद, प्रतिष्ठा, मेरा धन, वैभव, ऐश्वर्य, आज की मेरी जो भी स्थिति है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं. मैंने जो भी पास्ट में, जो भी विगत जीवन में जो जीवन चला गया, उस जीवन में या जो पुनर्जन्म को मानते हैं, पिछले जन्मों में जो भी मैंने कार्य किया, जो भी कर्म किए, उन कर्मों के सामूहिक परिणाम के रूप में आज मैं इस स्थिति में हूं. और आगे जो होना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस जीवन को क्या शेप देना चाहता हूं. क्योंकि जो भी आज की स्थिति है वो स्थिति के लिए मेरा दायित्व है. आई हैव क्रिएटेड इट नोइंगली और अननोइंगली. तो इसलिए आप अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं. ये रियलाइज मास्टर्स ने, सभी बुद्धिजनों ने ये बात कही है. और उसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ सिद्धांतों का, कुछ चीजों का आप अनुपालन करें, ताकि आगे का आपका जीवन कैसा चाहते हैं, कैसे जीवन का निर्माण चाहते हैं, उसमें वो सिद्धांत, वो अवधारणाएं आप अपने आने वाले जीवन के लिए अपने अंदर ले सकें, उनका ध्यान रख सकें. तो एक सेइंग जो कि हम सब जानते हैं और बार बार सुनते हैं, और जिसको हम कुछ
मात्रा तक लागू भी करते हैं। वो सेइंग है, एज यू थिंक सो यू बिकम। आपके जैसे विचार होते हैं उससे आपकी फीलिंग्स वैसी बनती हैं, और फीलिंग्स के अनुरूप आपकी एटीट्यूड्स बन जाती हैं। एटीट्यूड्स के हिसाब से आप फिर कर्म करते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं, और वो कर्म जब बार बार करते हैं तो आपकी वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और लगातार आदत से वो आपका संस्कार बन जाता है। और संस्कार को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारा चरित्र या करेक्टर या आचरण बन जाता है, और वही आचरण आपका डेस्टिनी का निर्माण करता है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर थॉट। कोई भी किसी भी व्यक्ति का विचार उसके निर्माण में, उसके जीवन के निर्माण में सब में इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो हमें विचारों पे विशेष ध्यान देना है, और विचारों का कैसे सृजन होता है, विचारों का कैसे हम रूपांतरण करें, इस बात पे हम ध्यान देंगे। दूसरा, जब आप अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे कि एक शिल्पी भवन का निर्माण करता है, तो शिल्पी देखता है कि उसके पास क्या संसाधन है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। प्लॉट ऑफ लैंड पे उसको मकान बनाना है, प्लॉट कितना लंबा या छोटा है, कितना उस पे धन है, कितना वो एक्सपेंड कर सकता है, और उस हिसाब से वो उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल ढांचा हो सकता है, डिजाइन हो सकता है भवन का, उस तरह से वो भवन का निर्माण करता है। ऐसे ही हमको भी ये देखना होगा कि हमारे पास क्या संसाधन है, मेरे क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज को ही नहीं जानते कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो यदि हम अपने रिसोर्सेज को नहीं जानते तो मैं कैसे जीवन का निर्माण करूं, और क्या मेरे मन में जीवन की परिकल्पना होगी कि मैं इस तरह का जीवन चाहता हूं या इस तरह का जीवन का निर्माण करना चाहता हूं। तो मेरे संसाधन क्या है, इस ओर गौर कीजिए। एक मेरा है शरीर, शरीर सब में बड़ी मेरे पास एक शक्ति है जो कि फिजिकल रूप से कुछ भी कार्य करने का, कुछ भी कार्य निष्पादन करने के लिए मुझे शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शरीर को जो चलाने वाला है वो मेरा मन है। मन तो बहुत पावरफुल होता है, उसका एक चेतन भाग है कॉन्शियस माइंड, और एक अवचेतन है सब कॉन्शियस माइंड। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, जहां से विचारों की उत्पत्ति होती है, और जो विचार हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं उस तरह से हमारे जीवन का निर्माण होता है। सो तन, मन, बुद्धि, बुद्धि भी एक मन का ही पार्ट है। बुद्धि का मतलब है डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, जो कि सही और गलत का भेद कर पाए, और जो सही क्या है गलत क्या है ये हर एक आदमी की अलग अलग धारणा होती है, हर एक का मानना अलग अलग होता है, बट दैट इज इंटेलेक्ट। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, सब में महत्वपूर्ण संसाधन है जो बहुत विराट है, जो अनंत है, वो है मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस। हु एम आई में हम इसी की चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं गॉड फैक्टर। यू आर गॉड, आई एम गॉड, यू आर डिवाइन, आई एम डिवाइन, एवरीबडी इज डिवाइन। ये जो चेतना है, ये चेतना ही सबका सोर्स है, सारे जीवों का, मनुष्य का, पशुओं का, प्रकृति का, सबका सोर्स ये चेतना है। जब तक चेतना हमारे शरीर के साथ जुड़ी है तब तक हमारा शरीर एलाइव है। जैसे ही ये चेतना छोड़ देती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। और चेतना ही वास्तव में, उसी को हिंदू धर्मों में ब्रह्मन के नाम से कहा गया, आत्मा के नाम से कहा गया, परमात्मा के नाम से भी कहा गया। क्रिश्चियनिटी ने भी कहा मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य ईश्वर का एक बच्चा है या ईश्वर का एक प्रतिरूप है। जितने भी धर्म और जितने भी स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं आज के दिन में सब मान रहे हैं कि एक ऐसी सोर्स है मनुष्यों का जो सभी का एक ही सोर्स है, सारे के सारे उस चेतना से कनेक्टेड हैं। और वो चेतना क्या है? वो चेतना इतनी विराट सत्ता है कि वो चेतना अनंत है। और यदि आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं
तो आप भी उतने ही विराट हो जाते हैं। आप एक विराट सत्ता के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है, जो कि आपका स्रोत है, जो कि डिविनिटी है, जो कि स्वयं में भगवान है, भगवत सत्ता है। और उसकी क्या क्वालिटीज होती है? उसकी क्वालिटीज होती है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस 10-20% नहीं, इनफाइनाइट हो जाती है। आपकी क्रिएटिव पावर, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस की क्रिएटिव पावर इनफाइनाइट है। देयर इज इनफाइनाइट जॉय, देयर इज ए इनफाइनाइट हार्मनी, इनफाइनाइट लव। उस अनंत चेतना में सारी चीजें अनंत में हैं। तो एक बार यदि आपको यह मालूम हो जाए कि आप मूल रूप में वही चेतना है, स्वयं में भगवान है, स्वयं में डिविनिटी आपके फाउंडेशन में है, तो उससे आपको अपनी विराट सत्ता का बोध होता है। और हु एम आई में इसी टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि आप अपने को केवल मात्र शरीर मानते हैं या मात्र शरीर और मन ही मानते हैं, तो आप अपने को बहुत बौना मानते हैं। तो आज के दिन में अधिकांश समय में हम अपने को थोड़ा, हमारा धन है, दौलत है, बाहर के संसाधन है और शरीर है, थोड़ी एजुकेशन है और थोड़ा ये मन है, इसके आधार पे जब मैंने अपने इतने सीमित संसाधनों में अपने को बांध लिया तो मेरे लक्ष्य भी बहुत छोटे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इस संभावना को जान जाता है कि चेतना के स्तर पर उसकी अनंत संभावनाएं हैं, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। और इसके साक्षात हम पे प्रमाण है। गांधी को देखिएगा, जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, जो भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने उसी चेतना के कारण, उसी इच्छा शक्ति के कारण, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के कारण बहुत बड़े बड़े कार्य किए। लाल बहादुर शास्त्री को देखिएगा। अभी मैं कहूं, अपने प्रेजेंट में ही अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखिएगा, तो वो सब उनके विराट लक्ष्य बने। उन्होंने केवल उस चेतना से जुड़ने के कारण ही उनके लक्ष्य बहुत विराट हुए। तो कोई भी यदि आपको अपने जीवन का निर्माण करना है तो आप अपने को छोटा ना माने। आप भी उसी भगवत सत्ता के, आप भी मूल रूप से उसी इनफाइनाइट चेतना के का आपका स्रोत है। और आप जो भी चाहें वो आप पा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ये हम आने वाले डिस्कशंस में इस बात को और क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक विवेकानंद की जो सेइंग है फेमस, वो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये उसी अनंत चेतना की बात को ध्यान में रख के उन्होंने ये 2 सेंटेंस बोले। कहने लगे, एवरी वन ऑफ यू, every one of us can shine like a sun, but if you want to shine you have to burn like a sun. आप में से, आप में की सत्ता इतनी विराट है कि आप सूर्य की तरह चमक सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूर्य की तरह अपने को तपाना भी पड़ेगा, उसकी तरह आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो आप जब अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सब में पहले आपको ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। यदि आप वास्तव में अच्छा भवन, जैसे मैं अच्छा भवन अपने लिए बनाना चाहता हूं, ऐसी अपने जीवन के लिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए उच्च लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। और यदि उसके मन में आता है ये तो मेरे संसाधन नहीं है, तो हर एक व्यक्ति में वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से वो कनेक्टेड है और वो विराट सत्ता आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचाने में पूरा आपको सपोर्ट करेगी। एंटायर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, पर आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने को तपाना पड़ेगा। दैट इज ओनली द कंडीशन। एक और एग्जाम्पल दी जाती है इसमें, वो ईगल की एग्जाम्पल दी जाती है कि जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, सारे पक्षी उस बारिश से भय खाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और ईगल क्या करता है? ईगल उस बारिश के ऊपर चला जाता है, क्योंकि बारिश तो बादल करते हैं। तो ईगल के अंदर इतना जुझारूपन होता है कि वो उस बारिश में भी
अपनी उड़ान को नहीं छोड़ता और वो बारिश से भी ऊपर चला जाता है। बारिश जिस तल से बरस रही है उसके ऊपर चला जाता है और वो अपनी उड़ान भरता है। तो ये आपको तय करना है कि आप कैसे भवन का निर्माण करना चाहते हैं, अपने जीवन को क्या आयाम देना चाहते हैं। क्या आप विराट सत्ता के मालिक होना चाहते हैं, कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य रखना चाहते हैं जो कि वास्तव में हमेशा स्मरणीय रह सकते हैं और आपकी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले तो लक्ष्यों की बात रही। अब दूसरी बात आती है इसमें कि मुझको ये और देखना होगा कि ये जो बात कही मैंने चेतना की और सोर्स की, तो इसके विषय में ये कैसे, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो इसके लिए बताया गया कि आजकल अभी एक क्वांटम फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स में क्या है, क्वांटम फिजिक्स में वो कहते हैं ये सारे का सारा यूनिवर्स इज ओनली ए क्वांटम फील्ड। ये क्वांटम फील्ड है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हम सारे ह्यूमन बींग्स हों या सारे जीव जंतु हों या वनस्पति हो, दे आर ओनली एनर्जी बॉल्स। हर एक व्यक्ति केवल एनर्जी और इंफॉर्मेशन का कंटेंट है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने कहा एक तो आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, उसमें से थोड़ा कार्बन, थोड़ा हाइड्रोजन, थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा नाइट्रोजन, थोड़ा और चीजें, वही हार्डवेयर आपका है, वही एक पेड़ का है, वही एक जीव का, एनिमल का है, सबका वही है। दिस इज हार्डवेयर। उसका मात्रा अलग है, उसकी बनावट अलग है जो नेचर ने की है, बट एट द लेवल ऑफ भौतिक तत्वों के हिसाब से उसके कंटेंट सबके एक ही हैं। ये 5-6 चीजों से ये बन जाता है। अब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो सब में उत्कृष्ट उसकी रचना है ईश्वर की। इसलिए कहा गया है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो कहते हैं हमको एक नर्वस सिस्टम मिला हुआ है और नर्वस सिस्टम की ये एक विशेष विशिष्टता है, उसकी एक क्वालिटी है। माई हिंदी इज ओके और शैल आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश? टेल मी। It's okay, sir. ओके It's okay. ओके। सो दिस उनकी एक विशिष्टता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ही कैन बी अवेयर ऑफ हिज ओन थॉट्स, हिज ओन इमोशंस, हिज ओन फीलिंग्स। ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं अपनी ही चीजों को सबको देख सकता हूं। आई कैन बी अवेयर, आई कैन बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज आई एम थिंकिंग। मेरे थॉट क्या हैं, मेरे फीलिंग्स क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरे बॉडी में क्या सेंसेशंस, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो ये मैं स्वयं का अवेयर, स्वयं को भी मैं देख सकता हूँ, उसके विषय में भी अवेयर हो सकता हूँ। बाकी पशु पक्षियों में ये पावर नहीं है, वो केवल ऑब्जेक्टिव वर्ड को देख सकते हैं। मनुष्य अपने के प्रति भी अवेयर हो सकता है, दैट इज अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, और वो बाकी ऑब्जेक्टिव वर्ड को भी देख सकता है। और वो उसका क्वांटम फील्ड जो है, मनुष्य का एक छोटा क्वांटम फील्ड हुआ और एक पूरा यूनिवर्स का क्वांटम फील्ड हुआ। इसमें लगातार एक्सचेंज चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो मनुष्य चाहे, चूंकि वो अपने एनर्जी फील्ड के प्रति अवेयर होता है, तो वो अपने एनर्जी फील्ड में चेंजेस ला सकता है और वो उसका एक्सपेंशन करके यूनिवर्स के भी एनर्जी फील्ड में चेंज ले आता है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने विचारों के माध्यम से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरे यूनिवर्स में ले आते हैं। जबकि पूरे यूनिवर्स में एक आदमी की कितनी बड़ी एग्जिस्टेंस होती है, बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नेचर ने हमको दिया है कि बिकॉज ऑफ आवर अवेयरनेस, बिकॉज वी कैन अवेकन अवरसेल्व्स, हम अपने में जागृति ला सकते हैं। और फिर यदि हमारा क्वांटम फील्ड जो कि लगातार एक्सचेंज हो रहा है यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड से, तो उस मेरे अंदर चेंज आएगा, तो उसके कारण मैं अपनी सराउंडिंग्स के माध्यम से सारे क्वांटम फील्ड में मैं बदलाव ला सकता हूं। तो हमारे अंदर परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्म करने की, अपने को और अपने को ट्रांसफॉर्म करने के बाद सारे विश्व को
हम ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस क्वांटम फिजिक्स का एक जिसने ये रिसर्च किया उसका नाम था मैक्स प्लैंक। उसने एक बात और कही, क्वांटम फील्ड में हम सब सारे के सारे जीव या ह्यूमन बींग्स, वी आर जस्ट लाइक वेव्स और पार्टिकल्स। और उसने एक ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात कही। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्वर इफेक्ट। उसने कहा कि जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु या किसी पदार्थ को देखते हैं, उस पर अटेंशन डालते हैं, तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। जैसे आप किसी प्लांट को देखो, 2 प्लांट रख दो, ऐसी रिसर्च हुई, और एक प्लांट को रोज देखो और एक को नहीं देखो, द प्लांट जिसको आप देख रहे हैं वो ऑब्जर्वर इफेक्ट के कारण वो अच्छा ग्रो करेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो वेव थी वो पार्टिकल बन जाता है या मिक्स हो जाता है, ये क्वांटम फिजिक्स ने ये बात कही। तो उससे ये सिद्धांत निकला कि व्हाटएवर यू पुट अटेंशन टू, जिस भी चीज पे आप, जिस भी कार्य पे अटेंशन रखोगे उसमें ग्रोथ होगी, और जहां से अटेंशन ले लोगे वहां पे वो चीज वैनिश हो जाएगी या वो डिक्रीज होने लगेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्य ध्यान से कीजिए, मीन्स यू पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट आइटम। तो इससे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का निर्माण हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जो है बहुत फेमस है। उसमें कहा गया कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, they are frequencies only, they are the frequency waves, and whatever kind of frequencies you send, जिस पे आप वाइब्रेट करेंगे, वो vibrations will go to the universe in the quantum field and they will come back multiplied. So if आपके भाव अच्छे हैं, सकारात्मक थॉट हैं, so they will bring back positive energy to you. If you express a feeling of love, it will come to you, love will come to you manifold. यदि आपके अंदर निगेटिव विचार हैं तो उससे निगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आपके अंदर पैदा होंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया, whatever you want in your life to happen, you have to focus your attention because of this observer effect. You have to put your attention on that aspect of your life and it should be positively worded, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो कंफ्यूजन की बात नहीं चाहता, और हमारे अंदर हम लोग इस चीज पे हम लोग सही नहीं उतरते हमारा कंडक्ट, क्योंकि हम जो है मूर्छा का जीवन जीते हैं। जैसे यदि मैं बीमार हूं, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पूरे समय में यही लगा रहता है मैं बीमार हूं, बीमारी से ठीक हो जाऊं। कहते हैं दिस इज ए नेगेटिव थॉट। And again when throughout the day you are feeling I am ill, I am having ailment, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो you are sending this frequency, this vibration to the universe, और यूनिवर्स से वो अप्रूव होके आएगी। तो आपको यदि डाउट भी था कि ऐसा एलमेंट है तो वो पक्का हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ऑलवेज यू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स and positive feelings. If you want to get out of the ailment, यदि आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो ये कहें कि I am healthy, I have already recovered. That should be your way of expressing your thought so that a positive vibration is sent to the universe. तो हमको ये हमेशा धारणा माइंड में रखना चाहिए कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, वो हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक हों। यदि उसमें कहीं भी निगेटिविटी है तो वो एक तरीके से एनर्जी की छोटी छोटी वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, एंड क्वांटम फील्ड में वो जा रही हैं और मल्टीप्लाई होकर के वो वापस आ रही हैं एंड दे विल इम्पैक्ट अस। सो इफ हम लोग कोई भी निगेटिव फीलिंग, हेट्रेट की, कंटेम्प्ट की, जेलेसी की, सेंस ऑफ कंपटीशन की, एनिमोसिटी की, कुछ भी हम रखते हैं
तो वो मल्टीप्लाई होकर के हमको ही नुकसान पहुंचाती है, एंगर की, ग्रीड की। तो इसलिए कहा कि हमेशा हमें मंगल, हमारा जो मानस होना चाहिए, मन होना चाहिए, हमेशा मंगल रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, सो दैट वी गेट गुड वाइब्रेशंस। और ये अटेंशन में इस चीज को कहा गया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी जो रिसर्च हुई इस पे, तो उन्होंने कहा कि 3 चीज आप कर लीजिए और 3 चीज से जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। 3 चीज क्या है? आस्क, जो आप चाहते हो। पहले तो आप अपने लक्ष्य बनाओ अपने जीवन के। आज के बाद जिसका जीवन जितना भी बचा है, जितना गया वो गया, अपना लक्ष्य बना ले और लक्ष्य बना करके वो रख ले, अपने कमरे में कहीं लगा ले, कहीं पुस्तक में चिपका दे, ये मेरे लक्ष्य हैं। और वो उसके माइंड में हमेशा वो पिक्चर रहनी चाहिए विजुअलाइज फॉर्म में कि यस, within 5 years this is going to happen this way, I am going to be this, I am going to be this। जो भी वो खाका खींचेगा वो विजुअलाइजेशन से वही मैनिफेस्ट होगा। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो ये है, यू आस्क, यू बिलीव, इट हैज। म्यूट कर दिए। यू आस्क, ये जो प्रिंसिपल है इसको ध्यान से सुनने का है। आप आस्क, आप मांगिए, क्या आप मांगना चाहते हैं, व्हाट इज योर डिजायर। यू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, आई वांट टू बी सच एंड सच थिंग, आई वांट ए हाउस बाय द ईयर 2022, आई वांट दिस। उसको आस्क एंड देन यू बिलीव कि ये हो गया, 22 तक मेरा मकान बन गया। ये संशय ना करें, क्योंकि यूनिवर्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता। यूनिवर्स में सब एक्शन अभी होता है, इसी मोमेंट में होता है। तो यू आस्क, यू बिलीव एंड यू थैंक द यूनिवर्स एंड इट इज डन। इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड यू आर हैविंग टोटल faith in the universe, because your body, your quantum field and quantum field of the universe, they go together, they synchronize। I am not different from the universe। मुझे जैसी मैं अपने सोर्स पे, यदि मैं मेडिटेशन के माध्यम से या धीमे धीमे अवेयरनेस मेरी बढ़ जाए, so I start understanding I am part of this universe, I am connected with this universe। एयर व्हाट आई एम टेकिंग, एयर का एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट यूनिवर्स से, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। मेरे अंदर कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसका एक्सचेंज नहीं हो रहा, मुझको लगता है ग्रॉस लेवल पे, अदरवाइज एवरीथिंग इज टेकिंग, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन यूनिवर्स एंड मी। व्हाटएवर थॉट्स आई एम सेंडिंग, दे आर बीइंग रिसीव्ड बाय यूनिवर्स, दे आर सेंट बैक टू मी। व्हाटएवर जो भी मैं चीजें चाह रहा हूं वो यूनिवर्स, केवल वो यूनिवर्स के एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए। यूनिवर्स की क्या बेसिक एनर्जी है? पॉजिटिव है, लव, हार्मनी, इंटरडिपेंडेंस। यदि आप चाहो, यहां भी सोचो कि मेरा जो ये आदमी अपोनेंट है ये खत्म हो जाए, या किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहो, सो दे बेसिकली आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। बट इफ यू वांट समथिंग फॉर यू, दैट कैन बी एबंडेंस, that can be a good employment, that can be some position, that can be some marriage or some relationship issue. Everything is possible by this principle only. Ask, believe that it is already done, and then be happy and thank the universe, express the gratitude। This is so simple in law of attraction and we have experienced it। वो कहते हैं ये कैसे संभव है, अभी तो आपने मांगा, कहने लगे इस डाउट को हटाना होगा। यूनिवर्स जो है या डिविनिटी जो है उसमें ये टाइम फैक्टर नहीं होता, इट इज टोटली टाइमलेसनेस। ओनली उसका इफेक्ट आपको बाद में आएगा, और कभी कभी तो हो सकता है वो इमीडिएटली आ जाए। यूनिवर्स का जो प्रोसेस चल रहा है इतना विराट का, उसमें कब वो चीज आपके सामने आ जाए, मे बी इट डजंट टेक टाइम, इवन इट हैपेंस मेनी टाइम्स। तो वो कहते हैं कि उसका एक एग्जाम्पल दिया कुछ मास्टर्स ने। उन्होंने कहा यू हैव टू गो अब्रॉड, आप जो है एक स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं,
अब आपने स्विट्जरलैंड का टिकट ले लिया 3 महीने बाद का, यू बिलीव नाउ कि स्विट्जरलैंड इज कंफर्म्ड. सो दिस वे यू बिलीव, व्हेन यू आस्क द यूनिवर्स, यू बिलीव राइट नाउ इट इज डन. क्योंकि आप तो 22 तक मकान मान रहे हैं, बट आपने उस वो मतलब यूनिवर्स हैज कंफर्म्ड इट, दैट मीन्स दैट. तो यू शुड बिलीव and then you should be thankful to universe, and that will manifest. That is the law of attraction, and this law of attraction has been practiced more. Present time में इसका ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो रही है. एक कोई अमेरिका का कोई कैरी करके एक डायरेक्टर था, तो वो चाहता था बचपन से कि मैं डायरेक्टर बनूं और मुझको इतना पैसा मिले जो कभी किसी को ना मिला हो. एंड इन द इवनिंग ऑलवेज ही विल विजुअलाइज दिस, दैट ही इज बिकमिंग अ वेरी बिग डायरेक्टर. एंड हिज फादर वगैरह भी उसको कहते यार ये क्या सोचता है तू बैठ के, बिकॉज ही हैड रेड समवेयर दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो ऐसा करता गया, और एक बार उसको कहीं पे गया, उसको बुलाया, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो नेचुरली, इफ यू वॉन्ट टू बी ए डायरेक्टर ऑफ दैट लेवल, आप प्रयास तो करोगे ना. प्रयास वो कर रहा था, तो उसका कहीं से इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद उसको क्या बताया गया, जिस आदमी ने, ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड, उसने ही गेव हिम ए ब्लैंक चेक कि व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक. एंड हिज दैट पर्टिकुलर संकल्प से सिद्धि, वो उसकी प्राप्ति हो गई. एक दूसरा केस है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दैट इज इन फिल्म प्रोड्यूसर है कोई, उस फिल्म प्रोड्यूसर के साथ भी ऐसा हुआ कि वो उसकी ग्रैंड माँ उसको बोलती थी कि आप जो है ये हमेशा बोला करो, आई एम ए लीजेंड, आई एम ए लीजेंड, आई एम ए लीजेंड. सो एवरी मॉर्निंग ही विल गेट अप एंड आई एम ए लीजेंड इन दी फिल्म, आई एम ए लीजेंड इन दी फिल्म. एंड उसका पूरा 24 आवर्स उसी तरह से उसका विचार और उसका विजुअलाइजेशन चलता था. कहते हैं ही बिकेम वन ऑफ द टॉप मोस्ट film producer in America. There is a name in music also. I wish ki I had just noted down somewhere. So in that case also this happened कि वहाँ पे उस म्यूजिक के क्षेत्र में वो उस लेडी गागा, she has been a very great musician. तो वो हमेशा ये कहती थी, और सारे अपने कमरे में उसने ये लिख के टांगा हुआ था, म्यूजिक इज माई लाइफ, म्यूजिक इज माई लाइफ, म्यूजिक इज माई लाइफ, फेम इज इन म्यूजिक, फेम इज इन म्यूजिक, म्यूजिक इज माई लाइफ. ऐसा करके उसे टांगा हुआ था. एंड शी बिकेम अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन, बिकॉज जब आपका थॉट लगातार वो वाइब्रेशन भेजेगा, ऑफ कोर्स यू विल मेक करस्पॉन्डिंग एफर्ट्स ऑल्सो. सो पावर ऑफ थॉट इज सो मच व्हेन इट इज बैक्ड अप with the consciousness कि you can create, you can manifest anything and everything in your life. So इस सिद्धांत से ये निकला law of attraction से कि you should be very very cautious in speaking your words and in thinking and in feeling. If you are not properly thinking, you are not properly wording your thoughts, it may create a big problem. जैसे कहते हैं, आप कहो यार आई एम वेरी बिजी. नाउ आई एम वेरी बिजी इज ए वेरी नेगेटिव थॉट. it is not good. You say now it is not possible to trust anyone in this world. Again it is a negative, it will send a negative vibration and you will create problem for yourself. Nowadays even your family does not stand with you. Again a negative thought. I have done good to everyone but all are cheating me. Again it is a depressing thought. So you have to be very very particular. If you are saying so, universe is such kind of gentle fellow, whatever you ask he will make it to happen for you. If you are saying your family doesn't stand with you, so your family will not stand with you. If you are saying nobody is trustworthy, then people will come and cheat you. So either you change your thought, you change your feeling, make them on the right way. Otherwise जो आपके साथ हो रहा है
जो गलत आपके साथ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार हैं अपने थॉट और फीलिंग के कारण। ऑफ कोर्स आप कॉशियस रह सकते हैं, आप सचेत रह सकते हैं, लेकिन सावधान रह सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप योर थिंकिंग इन ए प्रॉपर मैनर। इसमें एक बहुत छोटी सी महाभारत की भी एक बहुत छोटी सी एक दृष्टांत है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि के लिए उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य कहीं पे अपने पांडवों को, कौरवों को कुछ अभ्यास कराने के लिए कहीं पे वो गए, शहर के बाहर, कैपिटल के बाहर, और वहां पे उन्होंने डेरा डाला हुआ था। फिर जब उनका अभ्यास खत्म हो गया तो उन्होंने फिर कहा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन थोड़ा यार तुम आसपास के गांव में जाके देखो, एक भला आदमी देखो, कोई भला आदमी मिलेगा तो उसको पकड़ के लाना, उसको पकड़ के लाना। तो दुर्योधन का मुंह लटक गया, बट चूंकि गुरु की आज्ञा थी तो वो गया और काफी इधर उधर दौड़ भाग करके वो आया। शाम तक वो आया, उसने कहा गुरुजी मुझे एक भी भला आदमी नहीं दिखाई दिया, पूरे मैंने 7-8 गांव छान मारे और मुझे एक भी भला आदमी नहीं दिखाई दिया। और जब आपने कहा था मुझे पूरा विश्वास था कि भला आदमी आजकल कहाँ मिलता है। अब उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा अगले दिन कि युधिष्ठिर देखो इन 7-8 गांव में कोई कोई दुष्ट व्यक्ति हो तो उसको जरा सा पकड़ के लाना, उसको जरा मेरे सामने लाना। युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने पूरे दिन तलाश करी और शाम को आके उनसे कहा गुरुजी मुझे एक भी दुष्ट आदमी नहीं मिला, और मैं तो जब चला था तभी मैंने जान लिया था कि कहाँ दुष्ट आदमी, सभी तो लोग भले हैं और यहाँ तो गांव के लोग हैं, ये तो बहुत ही भले हैं। तो इसको कहते हैं मंगल दृष्टि। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ होता है, और ये 100% ऐसा होता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और चूंकि आपने उसको सस्पिशन में डाला हुआ है वो आपके साथ बुरा करेगा। तो इसमें ये आपको हमेशा सोचना है कि आपको अपने विचारों को बहुत कॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करते रहना है। वो जो है अनकॉन्शियस विचार होते हैं हमारे, तो हम क्या क्या चीजें कह जाते हैं और वो रिपीटेडली हम टेप रिकॉर्डर की तरह कहते रहते हैं, और उससे भी हमारे जीवन के निर्माण में प्रतिकूलता आती है। जैसे माइंड का थोड़ा सा हम विवेचना करें यहाँ पे, माइंड का एक पार्ट है कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट होता है क्रिएटिव पार्ट। कॉन्शियस पार्ट का तो हमको सबको मालूम है कि कॉन्शियस पार्ट को हम कंट्रोल करना चाहें, कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड हमेशा हमारी हेल्प करता है। बट एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरीके से प्रोग्राम्ड माइंड है, वो ऑटो मोड पे रहता है, उसमें कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग कब होती है? रिसर्च की गई कि जब बच्चा पैदा होता है 7 साल तक वो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स के पूरे सानिध्य में तरह तरह के डूज एंड डोंट सीखता है और उससे उसके रिफ्लेक्स एक्शन बन जाते हैं। फिर और 3-4 साल में बाहर निकलेगा, अपने परिवार से, बड़े परिवार, समाज, मोहल्ले में जाएगा एंड उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसके राइट और रॉन्ग का, उससे उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग बन गई फिक्स। ऐसा दिखेगा तो ये करना है, वैसा दिखेगा ऐसा करना है। अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग इतनी पक्की होती है कि आप कॉन्शियस माइंड में तो सोच लें सकारात्मक, बट यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कंडीशनड है तो आपका जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वहां फेल हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसा है? उसकी तुलना की है हाथी से। कहते हैं कि हाथी को महावत कैसे कंट्रोल करता है। हाथी जब बच्चा होता है तो उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है और वो बच्चा वहां पे रुका रहता है, और महावत बार बार उसी चीज को करते हुए हाथी की ये बात समझ में आ जाती है, उसका कंडीशनिंग हो जाती है कि मेरे पैर में यदि रस्सी बंधी है तो मैं उसको हटा नहीं सकता। और वो बड़े होने तक भी हाथी, जबकि हाथी कितनी बड़ी रस्सी हो उसके लिए उसको हटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी जाती है कि उसके मन में ये विचार ही नहीं आता। तो ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंडीशनड होता है
प्रोग्राम्ड होता है और ऑटो मोड पे होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का इन सब चीजों पे बहुत असर होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के लिए है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब भी कोई मौका आता है जहां पे रिएक्शन की बात उठती है, हम इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। किसी आदमी ने कुछ बोला या घर में भी, इमीडिएटली वी आर रिएक्टिंग। रिएक्टिंग का क्या मतलब है? हम ऑटो मोड पे हैं, मैकेनिकली। यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू टेक ए पॉज, रुकें, सोचें और फिर करें। दिस इज द कॉन्शियस चॉइस। यू हैव टू मेक ए कॉन्शियस चॉइस। जैसे ही आप कॉन्शियस चॉइस करने लगते हैं, धीमे धीमे आपका सबकॉन्शियस माइंड अनकंडीशन होने लगता है। सो दैट इज कॉल्ड डूइंग थिंग्स माइंडफुली, माइंडफुलनेस और डूइंग थिंग्स विद अवेयरनेस, विच इज, जिसको कहते हैं बुद्धा वे ऑफ डूइंग इट, और कॉन्शियस डिसीजन। और कॉन्शियस डिसीजन का दूसरा जो है, जो कर्म का सिद्धांत है, वहां पे भी एक कॉन्शियस की बात आती है कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है और कर्म जैसा आप करते हो वैसा आपको फल मिलता है। और कर्म क्या है? कर्म है, विचार भी कर्म है, शब्द भी कर्म है, और फिजिकल जो एक्टिविटी करते हैं वो भी कर्म है। तो कर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। विचार, इमोशंस, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो आपको कर्मों पे विशेष ध्यान देना है। जो भी आप कर्म करें, छोटे से छोटा भी, इट शुड बी वेरी कॉन्शियस। कि हमारी तो आदत बन जाती है, किसी अपने अटेंडेंट को कुछ बोलना है, लगातार बोलते रहेंगे, यार ये आदमी तो बिल्कुल कैजुअल है, इससे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जनरली ऐसे स्टेटमेंट हम लगातार अपने जीवन में बोलते हैं, किसी और व्यक्ति के लिए भी बोल देंगे। दैट इज यू आर जजिंग हिम। आई विल कम टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो उन्होंने कहा, नो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड यू शुड ऑब्जर्व योर वर्ड्स, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। नहीं तो आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाके आपके लिए वो उससे निगेटिविटी क्रिएट होती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर while choosing your words. You should observe your feelings, ताकि आपके रिएक्शन ना हो, आपके रिस्पॉन्सेस बने। आपने देखा होगा बहुत बार गुस्सा आता है, ये आप सबका, क्योंकि काफी लोग अभी जो है सीजन्ड हैं, तो उनको लगा हुआ कि यंग एज में तो गुस्सा आता था और इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते थे। अब धीमे धीमे ये समझ में आया, लेट अस जस्ट पॉज एंड देन वी शुड रिस्पॉन्ड। तो उससे ही बहुत सारी हम लोगों की स्थिति बेटर हो जाती है। तो कर्म के सिद्धांत में कहा कि कॉन्शियस चॉइस है, हर एक समय में, हर एक इवेंट में, हर एक सिचुएशन में एक ऐसी चॉइस है विच इज द बेस्ट चॉइस। और उस बेस्ट चॉइस को कैसे करोगे? बेस्ट चॉइस का एक ही मापदंड है कि आप आंखें बंद करके ये देखो कि इसके करने से क्या मुझे और मेरे जो आसपास लोग हैं सबको हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो कॉन्शियस और राइट कर्म है आपका। और उससे सबको तकलीफ हो रही है, तो दैट इज नॉट द राइट चॉइस, चाहे वो वर्ड्स की हो, चाहे थॉट्स की हो, चाहे एक्शंस की हो। और दूसरा उसका जो मापदंड बताया वो है कि अपने हार्ट में फीलिंग महसूस करो, हार्ट में सेंसेशन कैसी हो रही है। जस्ट इमेजिन दैट आई हैव दीज 2 or 3 चॉइसेस, और मैंने एक चॉइस करी और अंदर मैंने थोड़ा देखा whether I am having a feeling of sensation of comfort, then this choice is good. If I am having a sensation of discomfort, जब भी मैं कोई वैल्यू से अलग काम करता हूं तो मेरे अंदर वैल्यू का ब्रीच करता हूं, कुछ गलत काम करता हूं, कितना डिस्कम्फर्ट होता है। सो दैट इज ए रॉन्ग चॉइस अगेन। सो दिस इज वन मापदंड कि वी हैव टू ऑब्जर्व our thoughts, our words, our actions, then we live life of awareness, जागृति। नहीं तो हम आधे टाइम में ऑटो मोड पे रह के हमारा मूर्छा का जीवन होता है, जिसमें हम जो एक शिल्पकार की तरह, ये वैसे ही हुआ
कि आपने ईंटें अपने भवन में कैसे भी रखते हुए चले गए, ऑटो मोड में छोड़ दिया, भाई दीवार बनती रहेगी। और एक ये है कि मैं एक एक दीवार अपने भवन की बहुत अच्छी तरह बना रहा हूँ, जागृति के साथ बना रहा हूँ। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के कुछ सूत्र बताए गए। एक है, पहला सूत्र है एक्सेप्टेंस। इस मोमेंट में यू शुड एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इट इज, क्योंकि इस मोमेंट में आप कोई बदलाव नहीं आ सकते। आपकी जो भी प्रेजेंट पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करो। ये भी मान सकते हो दिस इज माई डूइंग ओनली। जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे तब आप फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करोगे। दिस इज वन थिंग। नो रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस होगी आप में रिजेंटमेंट होगा, रिजेंटमेंट विल क्रिएट निगेटिविटी, निगेटिविटी विल give the vibration of negativity to universe and it will come multiplied back to you. So you please accept this moment as it is, as a wonderful moment. Second condition है, you have to be non-judgmental. You will not judge any person, any situation, any circumstance, any relationship. यदि आप जज करते हो तो आप पहले से ही अपने आग्रह को वहां पे आरोपित कर देते हो, क्योंकि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस है, पास्ट में एक व्यक्ति से कुछ हो गया, कोई जरूरी नहीं कि आज भी वो वैसा ही कंडक्ट रिपीट करे। तो यू आर ब्लॉकिंग योर चॉइसेस, योर ओपननेस। तो आपको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। तीसरा, यू शुड हैव नो कंप्लेंट। कोई कंप्लेंट नहीं। कंप्लेंट मोड जो है वो निगेटिविटी क्रिएट करता है। If you are having resentment or you are having complaints, it will create negativity in your life. The vibrations will go out of in the world, out of negativity, and then they will come multiplied to you. So your life will be filled with negativity. So you have to be positive always, no complaint and no expectation. That is another. Don't expect anything from anyone because universe is with you. Whatever you want to whatever you expect, universe, just ask the universe and universe always says yes. So when universe is with you, why to expect and why to resent for small things from the persons, from the colleagues, from the friends, from the family members? That is. And then one of the important point is gratitude. आपको कृतज्ञता का भाव। सुबह को जब उठें, सारे count your blessings. If you count your blessings, you will find आपको रिजेंट करने का तो एक आधी पॉइंट था, but we find our mind is focused on something which is not as per our wish, and we do not give focus to the positive things. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उससे फोकस चूंकि हमारा उस चीज पर रहता है विच इज लैकिंग, वो और बढ़ जाती है। यदि मुझे सब तरह से मैं ठीक हूँ, मुझे एक बीमारी है और मेरा ध्यान उस बीमारी में है, तो उससे वो यूनिवर्स से वो मेरी बीमारी और प्रगाढ़ हो जाएगी। मेरे सारे संबंध अच्छे हैं, सारे लोगों से मेरा देन लेन अच्छा है, एक कर्ज वाला उससे मुझे पैसा नहीं आ रहा और रात दिन मैं उसे सोच रहा हूँ, वो उसको आना भी होगा तो वो नहीं आएगा, बिकॉज वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट। सो इसलिए वो कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, देयर इज ए दृष्टांत एक दिया गया। एक टीचर था और उसकी क्लास में स्टूडेंट्स थे, तो वो उनका मानसिक दृष्टिकोण क्या है इसका चेकिंग करना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं कल को तुम्हारा एग्जाम लूंगा, और सुबह को वो आया, उसने सबको आंसर पुस्तिका जो है एक एक करके दे दी। उससे पूछा बच्चों ने, इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। कहने लगे जो पहला पेज है उसी पे मैंने जो है क्वेश्चन लिख दिया है आपका। उन्होंने खोला तो उसने देखा हर एक बच्चे ने कि पहले पेज पे जो वाइट था पूरा, उस पे एक डॉट काला बना हुआ था और लेफ्ट में लिखा था कि आप इस पे कुछ भी करो, मतलब इस पे आप अपना कुछ भी डिजाइन बनाओ या कुछ भी करो। सब बच्चों ने, सारी बच्चों की जब पुस्तिका वापस आई तो सबने कुछ ना कुछ आकृति बनाई
उस डॉट से ही मिला के, किसी ने उस डॉट से मिला के घड़ी बना दी, किसी ने उसमें साइकिल बना दी, किसी ने उसमें कुछ अल्फाबेट बना दिया, बट सबने उस डॉट के आसपास ही अपना डिजाइन या अपनी कृति बनाई। ऐसे ही हमारी जो स्थिति है वो वैसी है। वो पूरा कागज इतना खाली था, वाइट था, ब्लेसिंग्स भी हमारी इतनी ज्यादा होते हैं कि पूरे पेपर में सारा जो वाइट है उसको अपना ब्लेसिंग पानी है, और वो काला डॉट जो है वो केवल एक मेरे अंदर समथिंग ग्रीवांस है, मेरी कोई कंप्लेंट है, कोई कमी है, कोई अभाव है। लेकिन जैसे उन बच्चों का पूरा ध्यान उस काले डॉट पे गया, डार्क स्पॉट पे, ऐसे ही हमारा जीवन में हमसे ये गलती होती है कि हमारा पूरा टाइम उसी डार्क स्पॉट पे रिजेंट करने में लगता है। और ये इट इज नॉट लाइक्ड बाय यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट करता है। चूंकि आप वहां रिजेंट करते हैं तो आपके लिए जैसा आप रिजेंट करके सोच रहे हैं वैसा हो जाता है। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज you should count your blessings, you should start giving gratitude feelings, express gratitude to the universe and universe will give you back. और जो आपका ब्लैक स्पॉट भी है, डार्क स्पॉट भी, उसको भी अच्छी तरह वर्डिंग करो पॉजिटिवली, सो दैट इट इज ऑल्सो ओवरकम। यदि आपका किसी से रिलेशन खराब है, यू विजुअलाइज माई रिलेशंस आर now going to be fine. You take a deadline and feel that way and send a vibration of love to him. Might be he may talk. Now this is the COVID time. This is a great time when if you have some relationship problems, now you talk. You can हालचाल का एक मैसेज भेज दीजिए. Might be इस टाइम पे किसी का पता नहीं है and things may take a turn. So we find यदि हम सोच अपनी सही रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यूनिवर्स से उसमें ही मदद मिलती है। ये एक सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। अब एक चीज आती है कि हमको वैसे क्या करना चाहिए। एक ये बात और कही कि शिल्पी में तो हैं आप, और आप जो एक अपने जीवन का जो शिल्पी हैं, अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं, इस पे भी एक बात है। जीवन में आप चाहेंगे कि आपके जीवन में एबंडेंस हो, धन की प्रचुरता हो, ताकि आपको कोई कमी ना आए, एक अच्छा स्वास्थ्य हो, एक मन की शांति हो, मन शांत रहे, पीसफुल रहे, एक अच्छे रिलेशनशिप हो, एक आपकी जो है हमेशा आपके मन में प्रसन्नता रहे, हैप्पीनेस रहे कंटिन्यूड, और आपको जो भी आप काम करें उसमें सफलता मिलती रहे। ये सारा हो गया। उसके बाद भी कहा कि एक 40-50 के बाद इन सब में भी सैचुरेशन आ जाता है, जो मैस्लो का लॉ है। तो उसमें उन्होंने कहा तब आदमी को इसके बाद उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जीवन को सार्थक बनाना, जीवन को मीनिंगफुल, and you can serve the universe. That is the real gratitude to the universe, because universe is giving us everything, so we must give something back to the universe. तो एक सूत्र बताया कि हम सभी लोगों के अंदर एक हिडन टैलेंट है। Every one of us has some hidden talent within us, लेकिन हमको उस हिडन टैलेंट का मालूम नहीं है, उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि संस्कारों के कारण माता पिता ने जो हमको बनाना था, इसमें इंजीनियर बनने में अच्छा पैसा है, सीए बनने में अच्छा है, एडवोकेट बनने में फादर एडवोकेट हैं, उस तरीके से हमने अपनी योग्यता को लिया और हम लोग बन गए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो पैशन है, हमारा जो हिडन टैलेंट है, वो वैसा हो। तो वो कहते हैं कि एक बार आप ऐसी स्थिति में आए, जीवन में आपको 2 मौके मिलते हैं, एक तो यंग एज पे और एक जब आप मैच्योर हो जाते हैं। तो आप फिर से अपने से ये पूछिए, अपने से ये क्वेश्चन कीजिए कि यदि अब आपको कुछ नहीं चाहिए,
you don't want. Your all physical needs, your all economic needs, everything is okay, fine. यदि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, you are satisfied, then what you would like to do? तब आप क्या करना चाहोगे? इसका आंसर होगा कि आपकी पैशन अब आप में आएगी कि I would like to be a musician, or I would like to do some charity, or I would like to do this, or I would like to be a speaker, I would like to help the people. तो जो वो आपका पैशन है, वो आपका हिडन टैलेंट है. तो यदि आप उस हिडन टैलेंट को थोड़ा भी उस पर काम करें, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट विल बी जस्ट यू यूनाइटिंग विद द यूनिवर्स. दैट विल बी योर गिविंग बैक टू द यूनिवर्स. दैट विल बी योर इंटीग्रेशन टू द यूनिवर्स. एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली फील हैप्पी कि दिस जेंटलमैन इज इंटीग्रेटेड विद मी, बिकॉज इट इज अवर ड्यूटी टू सर्व द यूनिवर्स. यूनिवर्स को सर्व, यूनिवर्स अपनी सर्विस के लिए कुछ लोगों का ही तो चयन करता है. यूनिवर्स हैज सेंट अस हियर ऑन दिस प्लेनेट with the hidden talent. We have to express those talents only, and when we serve we get rewarded, we get sustained. लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन का हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, उस तरीके से हमारा पालन पोषण नहीं हुआ. हमको सिंपली इस तरह से पढ़ाया गया जैसे कि हमारे माता पिता चाहते थे कि इस व्यवसाय में आ जाए, इस प्रोफेशन में आ जाए, यहाँ पे धन अर्जन अच्छा रहेगा. जबकि वास्तविकता ये है, हर एक बच्चा जब पैदा होता है वो उसका एक हिडन टैलेंट होता है, और यदि वो उस हिडन टैलेंट के लिए ही उसका पोषण किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो दैट इज द रियल इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्स. सो इफ सम ऑफ अस have missed that opportunity there, again one can feel at 50 or 55 कि दोबारा से ये जाने कि क्या हिडन टैलेंट है, और उस हिडन टैलेंट को यदि इस्तेमाल करेंगे तो यू विल बी टोटली इंटीग्रेटेड इन द क्वांटम फील्ड ऑफ यूनिवर्स. एंड यूनिवर्स से जो आपका, दिस विल बी ए रियल ग्रेटिट्यूड बाय यू टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स will be totally, you will be totally interdependent, universe and you, and continuous flow of energy, exchange of information and energy. and उससे आपको जो joy मिलेगा, जो आपको bliss मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो अभूतपूर्व होगा. This is another thing. One more important thing which जो आप अपना जब ये निर्माण करते हैं, जो अब जीवन जितना बचा है उसमें जो आप करना चाहते हैं और उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य निर्धारण आप करेंगे, एक आप सकारात्मक थॉट प्रोसेस रखेंगे, एक आप जो है उन लक्ष्यों को लिख करके रखेंगे, एक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ध्यान रखेंगे, और एक दो लॉ और हैं, दो सिद्धांत जिनसे इनमें और जो है सहायता मिलेगी. एक है लॉ ऑफ गिविंग. लॉ ऑफ गिविंग ये कहता है कि सारी नेचर जो है वो डायनामिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पे टिकी हुई है. सारे यूनिवर्स में एक्सचेंज हो रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग. सन इज गिविंग इट्स लाइट, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. रिवर इज फ्लोइंग, गिविंग वाटर, एंड रिवर flows, gives water, and river again gets water. So you give, you receive. This is the law of nature. And affluence का मतलब ये होता है, affluence comes from the flow. So if you have a wealth, if you are having some money or some other way that you can serve, you should not stop. You should keep it doing. Because if you stop, you are blocking the law of nature. Law of nature में है कि there has to be a continuous flow of energy. What is this energy? This energy can be money with you, जो कि ऐसे ही चल रहा है, पड़ा हुआ है. You will give and you will get also. It's not that. Your energy flow जो है वो continuous रहना चाहिए. यदि energy flow continuous नहीं रहेगा
तो that will be difficult for you also, and that can be, in fact you will be dissociated from that flow, from that connectivity with the universe. So कहते हैं you must keep on giving. Giving में amount और volume important नहीं है. If you cannot give in material terms, you can give blessings to somebody, you can send the feelings of love, you can give some small flower to somebody, you can give some compliment, but keep on giving whatever is possible. It is not depending upon the magnitude or the material things, but you should always be in the giving mode. When you are in the giving mode, universe is, you are made, you are fit to receive from the universe. If you stop giving, तो आप सर्कुलेशन जो है आपकी एनर्जी का रुक जाता है. तो इन द वेरी फैक्ट ऑफ गिविंग, in the very act of giving, receiving is implied. You give and you receive, you give and you get. तो कहा कि यदि आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जो चीजें कम है मान लो, तो लॉ ऑफ नेचर कहता है, ये सिद्धांत कहता है वो चीजें आप दो. इफ यू आर सपोज एलिंग, आप बीमार हैं, तो यू शुड गिव some money to help some patients for medical care of others. Automatically you will be cured. यदि आपको पैसे का अभाव है, try to help some people with the small amounts. That will make you into abundance. So whatever is lacking in you, यदि उन चीजों में आप गिविंग करें, ये बड़ा अजीब लगता है, मेरे पास तो है नहीं तो मैं कैसे करूं. But the law of nature says like this: in order to make up, you have to give something so that it is corrected by the universe. आप 1 रुपया देते हैं, यूनिवर्स आपको कितना भी दे सकता है. सो लॉ ऑफ गिविंग को कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए. और एक फिर जो है, इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लॉ ऑफ गिविंग को हम लोग अच्छी तरह समझें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह समझें, और जो हम ये सारा निर्माण कर रहे हैं, जो हमने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग करके जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में यूनिवर्स के लिए, और जो हमारा ये है लगातार सिद्धांत कि अच्छा वेल्थ होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा वैभव ऐश्वर्य है, सारी की सारी चीज हमें मिल जाएं, और हमारा हिडन टैलेंट भी यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको हमेशा कृतज्ञता के भाव में सुबह से शाम तक रहना चाहिए. एंड देयर शुड बी नॉट इवन एन इंच ऑफ नेगेटिविटी. यू शुड बी फुल ऑफ लव फॉर ऑल. देयर शुड बी फुल कंपैशन, एंड देन यू आर कंप्लीट. यू आर वन विद द डिविनिटी, यू आर कनेक्टेड with the source. And जो भी बड़े लोग हुए हैं, जो भी लोग हुए हैं ऐसे, like we take a case of Nelson Mandela. Nelson Mandela, when he comes out of the jail, तो लोगों ने उससे कहा कि अब तो आप जो है, जो लोगों ने आपको जेल में डाला उनको अब जो है आप you will take them to task. उन्होंने कहा जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, मैंने वो सारा अपना चीजें वहीं पे छोड़ दी, क्योंकि यदि मैं इस हिसाब किताब को निपटाने में लगा तो I cannot take care of my present and future. So basically the people who rise high, they become totally positive. Though the people have tortured them, people have been, very sometimes unfair to them, but still they are in non-judgmental mode. They are totally in a positive mode. And then only they reach that height, because they know that after all, everything which they have to get, it will come only from the universe. So when you know your potential, that you have infinite potential, anything can be done through you. आप देखो ना, कितने बड़े बड़े लोग भी हुए और कितने छोटे भी हुए. People who have started from the scratch. लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, एक बच्चे की कहानी है
एक अब्दुल कादिर करके एक ईरान में एक बच्चा था, एक विडो का बच्चा था, और उसकी माँ उसको पढ़ाई के लिए भेजती है। उसके पढ़ाई के लिए ईरान में उस टाइम पे जो बगदाद है वो बहुत अच्छा एजुकेशन का माना जाता था जगह, 8वीं सदी में। तो उस बच्चे को उस टाइम पे कारवा जाते थे, ऊँटों के बहुत सारे, कोई व्यापारी गया तो रास्ते में तो बहुत लूटने वाले होते थे, तो उसके साथ उसकी माँ ने उसको भेज दिया और कुछ उसको पैसे वगैरह दे दिए। तो उसको जब वो कारवां के साथ गया, रात को रुके, तो रात को वहां पे डाकुओं ने हमला कर दिया उस पे, और वहां पे सारे डाकुओं ने सारे लोगों को, उनसे सब कुछ छीन लिया। और ये बच्चा था 14 साल का, पढ़ाई के लिए निकला था, तो ये खड़ा रहा। तो इसको एक डाकू के गिरोह के एक सदस्य ने पूछा, अरे तुम्हारे पास कुछ है? तो इसने कहा, हाँ मेरे पास सोने की दिनार है। तो वो सोचा ये बच्चा है और इसके तो हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हंस के चला गया। फिर वो जब उसके अपने सरदार के पास पहुंचा, सरदार का नाम था अहमद बहावी, कुछ ऐसा नाम था उसका। तो उसने अपने सरदार से कहा, सरदार ने कहा सबको चेक कर लिया, सबसे आपने जब वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जो लुटा हुआ माल, तो सरदार लास्ट में पूछता है, जैसे इनकम टैक्स की सर्च पार्टी का हेड कहता है कि यू हैव सर्च्ड एवरीवन, एवरीथिंग इज कलेक्टेड, सो द सेम वे उससे पूछा कि क्या सबको आपने चेक कर लिया? तो वो कहता है मैंने सबको कर लिया, लेकिन एक बच्चा है वो कहता है कि मेरे पास सोने की दिनारें हैं, तो मैंने, वो तो उसके हाथ खाली है, उसके पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा तुम उस बच्चे को बुला के लाओ, अब्दुल कादिर को। तो उसको बुलाया गया, और उसको बुलाया गया, उससे पूछा, तो उसके चेहरे पे वो भी नहीं था, डर भी नहीं था। और उसने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा मेरे पास सोने की 16 दिनारे हैं। तो दिनारे कहाँ हैं? तो उसने कहा वो मेरे यहाँ पर, पहले यहाँ पे वो बांध देते थे, इस जगह पर उन्होंने कुछ उसको सिल करके बांध दी थी उसकी मदद ने, ताकि किसी को पता ना चले। तो उसने कहा ये यहाँ पे बंधी हुई है मेरे, दिखाओ। उसको खोला गया तो उसमें से 16 दिनारें निकली सोने की। तो उसने कहा, सरदार ने, तुमको ये बोलने की क्या जरूरत थी? तुमको ये क्यों बोला तुमने? तो उसने कहा कि मेरी मदर ने कहा था जब मैं घर से निकला था कि नेवर टेल ए लाई, यू स्पीक ए ट्रूथ, विद दिस कंडीशन आई एम सेंडिंग यू। तो कहने लगा कि मैं इन 16 दिनारों के लिए अपनी माँ को क्यों झूठा करता, अपनी माँ की बात को क्यों झूठा करता। अब वो सरदार ने जब ये सुना तो वो एकदम दहल गया, ही मेल्टेड इमीडिएटली। वो उसके पैरों पे गिर गया कि मुझे माफ करो, तुम अपनी माँ की बात को झूठा नहीं करने के लिए तुम्हें इन दिनारों को, और मैं अल्लाह की बात को रोज रोज झूठा करता हूँ। और वो उसके पैरों में गिर गया। देन दे लेफ्ट, उन्होंने अपना सारे के सारे और भी जो उसके साथी थे, उन्होंने सबने भी ये कहा कि सरदार वी आर विद यू, हमने आपके साथ ही डकैती की है, इफ यू नाउ लीव दिस प्रोफेशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू। और उसके बाद कहते हैं वो भी बड़ा नेक आदमी बन गया। तो जो आदमी ऊंचाई पे पहुंचता है वो वैल्यू बेस्ड भी होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें, और उसमें वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता होती है, वो अब्दुल कादिर उसके बाद उस पर्टिकुलर शहर का बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा पे, और उसने इस्लामिक लॉ में भी कुछ अच्छा, उसकी अच्छी पदवी रही। तो इस तरह के जो भी व्यक्ति हम देखेंगे हिस्ट्री में, उन व्यक्तियों ने अपनी सोच को सकारात्मक रखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यूनिवर्स ने उनका साथ दिया, और साथ में जैसे कि विवेकानंद ने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। तो अपने काम का हम जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करें, उसको विजुअलाइज करें कि ये पूरे हो रहे हैं, उसको आस्क, बिलीव और थैंक के माध्यम से उसको चरितार्थ करें, और साथ में अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखें, अपनी थिंकिंग को, चॉइसेस को बड़ा कॉन्शियसली, ताकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ हो रहा है कार्य, सब कॉन्शियस माइंड में
जो भी कुछ चल रहा है उस कंडीशनिंग से हम लोग अपने को बाहर निकल पाए। यदि हम उस कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकाल पाते तो भी हमको मुश्किल होती है। और लास्ट में एक सूत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। मैंने एक बताया था कि एक अटेंशन है, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, जिसका मैक्स प्लैंक ने चर्चा की कि जिस चीज को भी आप ऑब्जर्व करते हो या जहां पर आप अटेंशन देते हो, दैट विल ग्रो, वो ग्रो होने लगती है। तो आप जहां भी देखते हो और जिसको ग्रो करना चाहते हो वहां पे अपनी अटेंशन लाओ, और जहां से आप अटेंशन हटा देते हो वो डिप्लीट हो जाती है। और इस ऑब्जर्वर इफेक्ट का ये है कि वो एनर्जी जो कि पहले वेव में थी वो पार्टिकल में आ जाती है। इस तरह से उस एनर्जी पे भी, उस वस्तु पे भी फर्क पड़ता है। ये क्वांटम फिजिक्स में देखा गया। तो कहते हैं कि आप जो है अटेंशन पे लाओ वो चीज और फिर अपनी इंटेंशन वहां पे डालो। अटेंशन इज इन द प्रेजेंट एंड इंटेंट इज फॉर फ्यूचर। तो यदि आप अटेंशन के साथ अपनी इंटेंशन को डालोगे, अटेंशन इज लाइक ए फर्टाइल सॉइल। पहले आप अटेंशन से पूरा तैयार करते हो सॉइल, और फिर उसमें अपनी डिजायर रूपी इंटेंशन को डाल देते हो, इट विल बी फ्रूशन। और उस इंटेंशन को कब डालना है, इसके लिए भी जो लोग जो कि जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और जिनको वो प्रॉपरली जिससे रिजल्ट मिले, तो वो कहते हैं कि हमारा मन जब शांत होता है, जब हमारा दो थॉट्स के बीच के जो गैप हैं, इफ यू कैन ऑब्जर्व योर थॉट व्हेन योर माइंड इज इन स्टिलनेस, उस गैप में वो डिविनिटी है। स्टिलनेस और साइलेंस इज दैट डिविनिटी। स्टिलनेस और साइलेंस इज दैट कॉन्शियसनेस। यदि उस कॉन्शियसनेस में आप इंटेंशन डालते हो तो वो इंटेंशन जो है, अटेंशन के साथ जो इंटेंशन जाती है, उसका इमीडिएटली वो सीड रूप में वहां जाएगी एंड यूनिवर्स विल टेक ओवर ऑल द डिटेल्स फॉर यू। तो सिंपली आपको इन द साइलेंट मोमेंट, इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, या कोई मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन में उसमें साइलेंस में जाता है, या जब आप नेचर के साथ हो रहे होते हैं, व्हेन योर माइंड इज स्टॉप्ड। सेल्फ टॉक एक माइंड में चलता है हमारे, एक माइंड में एक टेप रिकॉर्डर की तरह चलता रहता है। उसका मतलब है माइंड में आपके थॉट आ रहे हैं। जब आपके थॉट कम हो, जब आपके थॉट में गैप हो, केवल उस गैप के बीच में आपकी इंटेंशन चली जाए, then that intention will go like a seed and universe will take over for its manifestation. तो उसके लिए you have to reduce your thoughts. आज के दिन में सब में बड़ी प्रॉब्लम है कि we people are into overthinking. We are always brooding. एक व्यक्ति के माइंड में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं एवरी डे। यदि आप उनको ऑब्जर्व करें और यदि थोड़ा मेडिटेशन करें तो वो 60,000 से आराम से 15,000 20,000 हो जाते हैं। और इतने वेस्टफुल थॉट्स होते हैं, उससे हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। सो यदि कोई भी पॉसिबिलिटी है जिसमें आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप नेचर के में थोड़ा वॉक करें, नेचर के साथ साइलेंस में रहें। मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब है बी साइलेंट, लेट योर माइंड बी क्वाइटेंड। तो जब माइंड क्वाइटेंड होता है तब उस स्टिलनेस में जो भी थॉट जाता है, और वो थॉट सकारात्मक भी होता है। अदरवाइज जब 60,000 थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं, उसमें से कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, मुझको मालूम नहीं होता, और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी जा रही है। So it is all a kind of mixture which I am sending to the universe. So I am not able to watch. So I have to be very conscious about my thinking. उस thinking के लिए या तो हम meditation करें या किसी तरीके से भी
अपने को साइलेंट, सुबह को हम साइलेंट मोड में होते हैं जब उठते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि सुबह को हम साइलेंट मोड में रहें और ग्रेटिट्यूड करें यूनिवर्स को, और शाम को सोते हुए भी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें। और दूसरा, जो भी निगेटिव थॉट हैं उससे प्रश्न पैदा होता है ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, तो कहते हैं थॉट्स जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग वातावरण ओनली। सबकॉन्शियस माइंड में मेरे थॉट हैं, फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा, किसी की चर्चा सुनी, मेरा माइंड निगेटिव थॉट्स को ज़्यादा लेता है। इफ देयर इज सम क्राइम, इफ देयर इज सम कोविड कैजुअलिटीज, माई माइंड इज मोर फोकस। जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग गया, जो लोग सब ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं, उधर फोकस नहीं है, जहाँ कैजुअलिटीज हो रही वो हो रहा है। सो हम लोगों का माइंड ऐसा है कि माइंड निगेटिव तरफ ज़्यादा जाता है। पूरे शहर में एक क्राइम हो गया, पेपर पे क्राइम की रिपोर्ट आई, इन द मॉर्निंग वी रीड इट एंड देन वी बिकम स्केरी, fear, we are in the grip of fear, and that vibration goes to the universe. So thinking के लोगों ने तो 3 बात बताए, लेकिन चार प्रकार थिंकिंग के बनते हैं। इसमें एक थिंकिंग का होता है डिस्ट्रक्टिव, जनरली आप 2 को जानते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, बट कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसकी 4 कैटेगरी कर दी। वन इज डिस्ट्रक्टिव, then there is negative, then there is positive, and then there is a miraculous. So destructive is जब मालूम पड़ा कि आपको अभी कोविड का मामला चल रहा है, कोविड का चल रहा है, आप कहीं गए, आपने सुना हुआ है, कहने लगे अभी ये बच्चा गया या कोई भी गया, आप खुद गए, कोविड में बाहर निकलेंगे तो वो तो कोविड तो कैच करेगी, गए, ऐसा आपने कहा। सो यू आर सेंडिंग दिस डिस्ट्रक्टिव थॉट। तो उससे पूरी प्रायिकता है कि जब वो कुछ इट मे कैच यू, उससे थोड़ा माइल्ड वो हल्का निगेटिव है, जिसमें कहा कि भाई देयर इज ए कोविड एंड मे बी इट मे कैच, वी शुड अवॉइड, वी शुड नॉट गो एंड वी शुड टेक ड्यू प्रिकॉशंस, बट स्टिल यू आर हैविंग ए फियर। सो बेस्ड ऑन योर फियर देयर इज ए लाइवलीहुड कि आपको कोविड अफेक्ट कर भी सकता है, माइल्ड तरीके से करेगा। पॉजिटिव थॉट इज यू विल से वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, माय इम्यूनिटी इज गुड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड आई हैव टू गो, आफ्टर ऑल आई हैव टू गो, एंड आप जा रहे हैं। इफ यू हैव ए पॉजिटिव थॉट दिस विल मैनिफेस्ट, यू विल बी सेफ, मच सेफर। एंड मिरेकुलस क्या है? माय इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कोविड विल नॉट अफेक्ट मी, come what may. So there are people like this, they have a very strong thinking pattern that is called miraculous. So कहते हैं उन लोगों को उनका साइकी इतना स्ट्रॉन्ग होता है साइकी का कि उस साइकी में कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। एंड थॉट पैटर्न्स whatever we have, it makes a lot of impact on our psyche and on its manifestation. तो हम लोगों को थॉट्स कम भी करने चाहिए। निगेटिव थॉट जो हम इंफॉर्मेशन के सिस्टम से, पेपर से, व्हाट्सएप ग्रुप से, और उन व्हाट्सएप ग्रुप को हम आगे बढ़ा देते हैं। वी शुड केवल उतना देखना चाहिए ताकि हम सचेत हो सकें। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमें सचेत रहना है, उसके लिए सजग रहने के लिए वो ठीक है, बट अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग and we are just making lot of discussion about the negativities, so it is going to hurt us. This is what they are saying. Reduce your thought, be a conscious thinker, don't take negative thoughts, and make conscious choices, and also try to uncondition your conditioned subconscious mind. तो then जो भी आपका thought pattern होगा, जो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, that will manifest एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स में इतनी पावर होती है, कभी कभी तो आप कुछ उम्मीद करते हो। देयर आर केसेस, कोई आदमी सोच रहा है मुझे मकान का उसने एक ऐसा एस्पिरेशन किया, he asks universe for a house within very short time, maybe 2 years, 3 years, and he believes it
एंड देन ही थैंक्स। मालूम पड़ा 10 दिन में ही आपको यूएसए में देयर वाज ए केस कि वो ऐसी देयर वाज सम लेडी हु यूज्ड टू रीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यूज्ड टू बिलीव वेरी स्ट्रांगली। नाउ शी हैड सम काइंड ऑफ विजन कि वो कहीं पे जा, उसके माइंड में ये विजन आता था, मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसा पैलेस चाहिए, थोड़ा सीनिक भी हो, ये हो, ये हो, ये हो। एंड शी वाज विजुअलाइजिंग दिस आल्सो, कुछ मन में कर रही थी। उसके कुछ ही दिन में उसके सामने एक पेपर आता है, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर वो खोलती है तो कहते हैं दिस हाउस ऑन दिस दिस स्ट्रीट इज फॉर सेल। उसकी डिटेल्स देखती है तो वो उससे मैच होती है। Now she knows that she doesn't have funds. She was aspiring it to happen another 3-4 years. तो उसके बाद भी वो उसको कॉल करती है, तो कॉल में एजेंट से होता है, एजेंट कहता है हाँ इतना इतना पैसा है। कहते हैं I this house suits me but I don't have a money right now. Then he says no this is the way we will resolve it, this करके she is called there and then she gets a house. So universe has so tremendous powers. Once universe catches your wish or you are able to express your wish with that thought pattern, it may happen very soon. So our duty is just to connect to our source, number one. अपने हम consciousness से connect हो ताकि हम universe से connect हो सकें. We have to be positive. We have to be goal oriented. Our goals should not be in conflict with the goals of the universe. We should be always giving and sharing and caring with the humanity and all the beings of this universe. And we should make conscious choice because law of karma also operates. So with this, I would like to conclude. If anybody has any questions, most welcome. Thank you, sir. Thank you very much. It was so powerful. हमने पहले सुना तो था इन सब बातों को, लेकिन there was no clarity. आज आपने वो clarity दी है. आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत बताए हैं, सफलता के सूत्र बताए हैं. एक्चुअली बहुत सी बातें तो आपने ऐसी बताई है जो हमारे लायनिज्म के एकदम ही अनुकूल है. जैसे Yes. आपने बताया कि एट द कॉन्शियस लेवल वी आर वन. इन लायनिज्म वी आर 14 lakhs members of our organization are one family. Okay, very good. आपने बताया कि डोंट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड. हम कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं लायनिज्म में, हम रेस्पॉन्ड करते हैं. Great. आपने बताया कि वही करना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, खुद के Yes. लिए अच्छा हो नहीं करना है. हम Yes. लायनिज्म में वही करते हैं जो सबके लिए अच्छा हो. लॉ ऑफ गिविंग को तो हम हमारे वो डीएनए में आ गया है. Okay. और आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई ईगल के बारे में. जैसे बर्ड्स होते हैं, अपने बारिश होती है तो नेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन ईगल जो क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है, वो बारिश के ऊपर चला जाता है. हमारे आने वाले गवर्नर प्रसाद जी का जो स्लोगन है उसमें भी ईगल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद उन्होंने आपसे ही सीखा हुआ है. I don't know. Eagles से सीखना चाहिए. We can take up 2-3 questions quickly. Very good. Please unmute yourself and ask. Take the full benefit of this seminar. Jain Sahib is here for some time. Any question, please unmute and ask. Pawanji, Yes. with your kind permission, can I have a small question to? Yeah, Jain sir? please, Pramod, Sir, most welcome. I'm a positive person, but I would like to ask you a small thing. So, to what extent is luck plays in your life, in your faith, and in the future? Of course, Purusharth has to be there, but sir, you can give your small comments on that, sir. नहीं, अब मुझे थोड़ा क्लैरिटी से सुनाई दिया. कैन यू रिपीट इट? Sir, नहीं, to what extent? यू हैव अंडरस्टूड. थोड़ा आवाज मुझे क्रैकिंग सी आ रही है आवाज ना. Yeah, Pramod ji, loudly बोलिए जरा please. I'm Pramod Shah. Sir, I want to ask you a small question. Yes. I'm a positive person, but I want to ask you a small question that to what extent the prarabdha means a luck plays role in shaping up the life. Of course, Purusharth has to be there. What you have mentioned, we accept it, but you can give a small comment on that, sir. Yes, ऐसा है. लक का क्या रोल है? हाँ, ऐसा है कि देखिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दे गो टुगेदर. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, कुछ स्पिरिचुअल के सिस्टम है, वो तो कहते हैं ओनली दिस लाइफ. बट जैसे हिंदूज हैं, जैन्स हैं, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, वो कहते हैं ये अनंत जन्म है. तो उसमें कर्म के सिद्धांत को बहुत मजबूती से उन लोगों ने, सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने, इन्होंने माना हुआ है. वो कहते हैं हमारे बहुत सारे संचित कर्मा हैं और संचित कर्मा का बहुत बड़ी संचित कर्मा का बहुत सारा समूह होता है. उसमें से प्रारब्ध कर्मा इस जन्म के लिए
उसके प्रारब्ध कर्मा की एक बास्केट, उस प्रारब्ध के अनुसार हम लोग किस घर में जन्म लेंगे, किस कंट्री में लेंगे, कैसा धन संपदा होगी, कैसी हमारी हेल्थ होगी, वो सब होता है। तो प्रारब्ध से तो हमको एक बैकग्राउंड मिलती है और पुरुषार्थ से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे कभी कभी एक बच्चा जिसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं है और वो अपने पुरुषार्थ के कारण, पढ़ाई के कारण पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, और एक धनाढ्य बच्चा भी धनी परिवार का वो एडिक्शंस में चला जाता है एंड ही इज नो वेयर। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध का दोनों का अपना रोल है, बट यदि पुरुषार्थ आप मजबूती से करें तो प्रारब्ध की धाराओं को, प्रारब्ध की बैकग्राउंड में आप काफी परिवर्तन ला सकते हैं, यही मैं कहूंगा। Thank you very much, sir. Any other question, please? Sir, I have a question. आपने बताया प्रारब्ध के बारे में, लक के बारे में. Now, sir, tell us what is the role of hard work in manifesting our goals? Yes, वही मैंने कहा कि ऐसा है कि एक तो यदि दो तरीके हैं, हम ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क से, यदि हार्ड वर्क में आपके अंदर एंजाइटी है और स्ट्रेस है तो वो हार्ड वर्क ठीक नहीं है। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दीज लॉज ऑल्सो। उसमें एफर्टलेस ईज से आप पुरुषार्थ करें। आप यदि एफर्टलेस होकर के काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, आपने कभी भी देखा होगा। तो यदि इफ यू बिलीव, you ask, you believe it is done for you, and then you put in best efforts with effortless ease. This is the law. They say law of effortless ease. आपने ऑलरेडी जो है अपनी डिमांड रख दी to the universe as you are the child of universe. अब आपको उस पर पूरा काम करिएगा आप मजबूती से। केवल आप ये सोचेंगे तो आपके मन में स्ट्रेस होगा यदि केवल आप हार्ड वर्क से। एफर्ट्स तो कीजिए बट इजी होकर के कीजिए। दिस इज व्हाट दे से। Right, sir. So, friends, any other question? No? With all due respect, may I be permitted to ask a question? Yeah, please. Good evening, sir. Sir, you just spoke about the hard work and efforts to be made, but I'm a young lawyer and the outside situation is as such where I'm ready to work hard, but I'm not getting the opportunities to do so. So in this situation, what should I do? Should I work on myself, or should I learn more about myself, or should I update my CV otherwise and my intellect otherwise, or should I just wait for the universe to let things happen in the way it is supposed to? ऐसा है कि what I have said, that the moment you feel that your all possibilities are blocked, that is a negative thought. And of course, sometimes people get quite depressed because particularly in the professional fraternity, the younger ones don't get opportunity. That is the kind of atmosphere we have, and perhaps that is the expression coming from you. But you should have good confidence in you and you visualize, क्योंकि जितने ये लोग आजकल सीनियर हैं, लीडर हैं, ये भी किसी टाइम पे आपकी स्थिति में रहे हैं, ये मान लीजिए आप। Yes, sir. आप उन सीनियर लोगों को पूछिए तो वो कहेंगे अरे अभी तो आप बहुत मौज मस्ती करते हैं, हमारे तो सीनियर हमसे जो है 24 घंटे काम लेते थे। तो आप वो मत देखें। यू शुड ऑलवेज लुक अप टू दोज पीपल हु हैव राइजन एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू विजुअलाइज दैट आपको कहाँ पे जाना है, अपने प्रोफेशन में किस लेवल पे जाना है और कैसा आपका वैल्यू बेस्ड रहेगा, वेदर यू आर बिलीवर इनटू द वैल्यूज, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बहुत बार तो ये बिलीफ सिस्टम हो गया, सीधे तरीके से तो कुछ काम होता नहीं है। So let us break all the laws. Let us breach all the laws. So then perhaps those kind of people do not fall in this system. This system is based on love, good values. Then only universe reciprocates. It's not by hook and by crook. But if you are really a conscientious person, you visualize, you are committed to the hard work. Also, you are committed to the good service to your client. Treating them as a god, because यहाँ पे divinity, इसके background में कहीं भी divinity और चेतना है, that we all are one. So once you have, your confidence will be manifold, and then some way will be found for you. Maybe others may not get that. You will get opportunity, and it will happen definitely. Thank you. Yes, Sir. sir. Thank you, sir.
ओके, हेलो सर, यस, या मैं ब्रज गोयल बोल रहा हूँ। बोलिए गोयल साहब, बताइए। सर क्या है कि ये जो पॉजिटिव थॉट है और एक नेगेटिव थॉट है, उसके अंदर एक बड़ी बारीक सी लाइन रहती है जो हम समझ नहीं पाते। ये पॉजिटिव थॉट किसको कहते हैं, और कई हम सोचते हैं हमारे थॉट हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि हमारे थॉट में कोई नेगेटिव पना है। तो हाँ, उसको कैसे हम समझे? ऐसा है कि जहां भी कोई, सुन लीजिएगा, इसमें जो आपने रूल ऑफ ग्रामर पढ़े हैं, कैन यू म्यूट किसी का डॉग इज देयर, दैट सो दिस, जहां पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया वो संशय वाला हो गया, तो वो निगेटिव में चला गया। जैसे मान लो अभी आप बीमार हैं, कोई आदमी को कोई बीमारी है, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा थॉट बनाया आपने, तो ये निगेटिव थॉट है। यूनिवर्स को सीधी लैंग्वेज चाहिए, आई एम हेल्थी। आप आई एम हेल्थी का एफर्मेशन भेजें तो यूनिवर्स विल रिसीव, यूनिवर्स भेजेगा। यदि आप ये कहते हो मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये निगेटिव थॉट है यूनिवर्स के हिसाब से। तो वहां पे आपको स्ट्रेट अपना थॉट रखना है। आपको कोई रिलेशनशिप में कुछ खराबी आ गई है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, ये आप कहेंगे तो ये पॉजिटिव है। और ये कि मेरे जो रिलेशंस, मेरा जो उनके साथ बिगड़ा हुआ संबंध है वो ठीक हो जाएगा, तो ये निगेटिव है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस थॉट्स के जो हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड पॉजिटिव। निगेटिव में जहां भी आपने संशय कर दिया या जो आपकी आज गलत स्थिति है उसको रखते हुए उसको बनाया, तो यूनिवर्स विल नॉट अंडरस्टैंड। Thank you very much, sir. Okay. So now I thank you, sir. Very nice presentation. And Pawan ji Agarwal. Yeah. Pawan ji, I'd like to substitute. Hello, Yeah. Pawan ji, Dr. Hegde here. हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या क्वेश्चन है? Hello. Yes. अच्छा, Pawan ji, हाँ I'd बताइए. like to ask, Mr. Dr. Jain, Yeah. that I'm first of all, I'll say I'm really thankful to you, because in 1985, I was a very small man. I was a practitioner, dental practitioner. At that time, I had met the person, one Mr. Vaman Rao Pai Maharaj. I don't know whether you have heard about him. And same this thing, our in Marathi, they used to go on this thing, giving the lectures. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. And lakhs of people. Hello. Yes. Yeah, we are hearing. I know that you are hearing now. And you will not believe it, sir, whatever the principles you are going to, I'm so happy, because literally I have followed that. Seriously, I have followed. And you will not believe it. Within no time, slow and steadily, I started improving. And the success started coming itself. And now, I have gone to all the various sections and all. And practically everywhere I am successful. I must tell that. So I am so happy that after about 35 years, I am hearing these lectures, and I am so happy and proud of you, because almost about 2 hours you spoke so well. I cannot forget you, sir. All the principles, I literally follow that, and I like to tell my lion friends that if you really follow it, whatever Mr. Dr. Jain has said, I think you will have a great success. There is no other thing at all for you, substitute for that. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Now I request Hegde Sahab to say a few words in the capacity of second Vice District Governor elect. First of all, congratulations to you, and it's our pleasure, it's our privilege that you are with us. Please, AJ, in the capacity of the Vice Governor, now tell us something, sir. Floor is yours. Pawanji, first of all, I am thankful to you that for inviting me and giving me opportunity to speak here, because I am so happy about you. Why? That you have arranged until now the different lectures which are really useful to us, whether it may be taxing purposes or any other purpose actually I've seen. And due to this, a lot of the new knowledge it is coming to us today also. I think it is such a useful for this thing, because we never think of it, that positive thinking and so many things they have told us. I think if you put in the practical, the hardship and hard work and all, what are the various aspects Dr. Jain has said, I think really if you follow it, I think it will be a huge one. And I'm really thankful to Mr. Agarwal once again, that if you go on continue for different lectures,
I think it will be really useful to us in the life also and in the analytic career also. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you. I am very happy. I am very glad. Thank you so much. Now, may I request our first Vice District Governor-elect, Lion Sanjay Churiji, to enlighten us, say a few words, and give his observations. Sanjay Saab, please unmute yourself and speak. Please unmute yourself. Yeah, good, sir. Please. Yeah, good evening. Pawan ji, hats off to you. जस्ट लास्ट सेशन था तभी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आपकी ये जो सीरीज है कंटिन्यूसली आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे हमें जो नॉलेज दे रहे हो और एनरिच कर गए हो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और वो कंटिन्यूटी आपने रखी है। और आज के जो पर्टिकुलरली जो स्पीकर आपने बोला है ऑन दिस सब्जेक्ट, ये जो इंडियन फिलोसफी है, जो इतनी सरलता से उन्होंने एक्सप्लेन की, कुछ चीजें हमें मालूम थी मगर नक्शल में थोड़ा बहुत मालूम था, और जिस तरीके से एक एक कड़िया वो जोड़ते गए और वो सूत्र हर एक चीज का हमें वो बताने लगे, तो इसका मतलब है ये गागर में सागर भरना जो काम डॉक्टर साहब ने किया है, इट वाज टोटली स्पेल बाउंड, एनरिचिंग। और ये इतना टाइम हम कंटिन्यूसली सुनते रहे और फिर भी ये दिल नहीं भरा है कि लगता है और सुनता ही रहूं, क्योंकि ये नया कुछ मिल रहा है। और ये पर्टिकुलर जो लास्ट 1 ईयर जो डिप्रेसिव ये जो थॉट प्रोसेस सबकी चालू है, उसका जो टोटल चेंज जो लाना था वो डॉक्टर साहब का आज लेक्चर सुन के हर एक को आज मिला होगा। सीधी सी बात उन्होंने जो कही, वो जो यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी और यू बिकम व्हाट यू थिंक, और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट ही एक्सप्लेन्ड, और आस्क, डोंट जस्ट आस्क बट व्हेन यू आस्क बिटवीन a gap of 2 thoughts, so that stillness that you should get in meditation. So that was very good. He explained that ask, believe in that whatever you manifest, and then gratitude, that is the most important thing. And how that manifestation should be, that also he explained so well, that there should not be negative thought, has to be in now, in present, it has already done, हो गया है, ये समझ के जो मैनिफेस्टेशन करने हैं, तो वो काफी अच्छा है ये किया। जो अपनी कंडीशनिंग ऑलरेडी बचपन से हो गई है, जैसे हमने सुना भी है, माना भी है कि अभिमन्यु तो जब माँ के पेट में था, गर्भवती वो थी, तभी से वो लर्निंग चालू हुआ। यानी कि हम मानते हैं, अपनी फिलोसफी मानते हैं कि हमारा लर्निंग और हमारी कंडीशनिंग कभी से चालू होती है। तो ये काफी सारा ये जो नॉलेज आज जो दिया, और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव जस्ट थॉट नहीं, मगर उसमें एक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ट थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, ये पॉजिटिविटी एक्शन में जब तब्दील हो जाएगी तभी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। काफी सारा ये जो नॉलेज जैन साहब आपने दिया, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। और पवन जी, आपके खास धन्यवाद, जो आपने ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन को आपने बुलाया, जो डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है और फिलोसोफर है। इतने ज्ञानी जो पर्सन, उनको आपने जो बुलाया, और ये एक्सीलेंट जो कंटिन्यूस सीरीज आपकी है वो लगातार चलती रहे। ये लॉ ऑफ गिविंग जो है, आपने सही मानों में कहा कि काफी सारे जो सूत्र उन्होंने बताए वो एज ए लाइन हम फॉलो करते हैं, और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो हमें वो फॉलो करने हैं। जो ऑब्जर्वेशन आपने कहा करने के लिए मैंने कोशिश की, जितना सारा मैं नोट डाउन उनके पॉइंट से कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि ये 2 घंटे में मुझे कितना सारा ज्ञान मिले हैं, और इन फ्यूचर how I'll be benefited, how I will be using this knowledge. And I'm truly grateful, and I'm expressing my gratitude to Jain Saab, Pawan ji, entire universe. Thank you. Thanks a lot for giving me this opportunity.
Thank you, Sanjay ji. Thank you very much. Originally, this lecture was planned for only 1 hour. लेकिन 2 घंटे कैसे निकल गए हमें पता भी नहीं चला. और भी सुनने के लिए हम और भी हम सुन सकते हैं. Thank you very much. So now, Prasad ji, any final word from you, sir? प्रसाद जी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगे आप? फाइनल ऑब्जर्वेशन. Congratulations to you. I'm audible. Yeah. Yes, I'm audible. Yeah. Yes, sir, you are audible. I would like to just conclude by saying hats off to you, Pawan ji. Continue with the work, good work you are doing. Organize many more webinars and give us knowledge on different subjects. You have been doing wonderful work. I already praise you, and I want that you should continue not only this year, but in the next Lionistic year 21-22 also. I want to see you active, organizing. There is some network issue. पवन जी, प्रसाद जी ने कहा नेक्स्ट ईयर भी आपको एक कंटिन्यू करने हैं. मैं तो कह रहा हूं कि जितने साल आप कंटिन्यूअसली कर सके हो उतने कर लीजिएगा. ये मेरा तेरा इसका ईयर नहीं, ये लायनिज्म के लिए जो बेनिफिट होगा सबके लिए कंटिन्यूअसली करते ही रहो. Always. Will be always Sir, I assure you, till my last breath, I will be in Lionism. Wow, great. I'm really grateful. You have been doing. Pawan ji. Yeah. Now, can I request Lion Naresh Shah, who has helped me a lot in this organizing this webinar, to propose a well-deserved vote of thanks. पवन जी एक सेंटेंस बोल दूं मैं? हाँ बोल दीजिए ना. इतने कम समय में पूरी जिंदगी का सारांश बताना इतना आसान नहीं है, मगर बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बयान किया. अगर जीवन में हर व्यक्ति इस को बराबर समझ के करे तो कहीं भी नेगेटिविटी कहीं भी नहीं आ सकती, और जो भाईचारा से हम लोग काम करते हो और आगे बढ़ के करें. सारांश इतने सुंदर शब्दों में जो व्यक्त किया है, तो उतना गहराई से जाने के लिए उनके पास कितनी गहराई होगी उसका अनुमान करना बहुत ही मुश्किल है. शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ. बाकी उनके शब्दों की एक एक बात को अगर आप समझोगे, दिल से लोगे, तो जीवन में कहीं भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती. और पॉजिटिव इज अ मेडिसिन ऑफ द लाइफ. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल सेमिनार. और खास तौर पे सभी लाइन को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने पेशेंटली इन्होंने आज सुना. कई सेमिनार हुए, मगर आज जिस तरह से लोगों ने जो साथ दिया और सेमिनार को जीवन में पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर. थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली इनकी बातों को पूरा समझने के लिए आपको ये लेक्चर एक दोबारा देखना पड़ेगा. आई विल बी फॉरवर्डिंग द रिकॉर्डिंग. सो आप मेडिटेटिव पोज में जाकर, मेडिटेटिव स्टेज में जाकर इसको एक बार फिर सुनिएगा, तो इसकी गहराई आपको समझ में आएगी. हमको तो सर आ गई, क्योंकि हमको तो मालूम है, मगर एक बात हम समझ के लोग, उसकी मेन थिंकिंग यही है कि कोई कुछ भी नेगेटिव करे, आप पॉजिटिव में लेके उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लेके आओ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जीवन और फास्ट चलेगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. स्पेशलिटी एंड I recognize the presence of Kamlesh bhai as well as past honor रविंद्र कडेल जी. रविंद्र होगा तो बोलो, उसको बोले कुछ. रविंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे रवि कडेल नहीं लगता है, शायद वो लाइन पर नहीं है. ओके नरेश जी, फॉर वोट ऑफ थैंक्स. Only one line about Dr. Jain, so that from income tax to spiritualism is a very, very rare thing we can come across, and with Dr. Jain is an example of it, and many more income tax people should follow his pattern.
Thank you. Thank you. Pawan ji, Dr. Jain visiting is still line practicing governor. Dr. Jain Pawan ji. has started his practice in income tax. He's handling the appeal matters and he's handling the advising the taxpayers. So he's always available with us for any guidance, any help, any service. That's And पवन that जी, is- पास गवर्नर जैन साहब है इधर चर्चगेट की मेंबर की मिस्टर, so हाँ, ask him to Anil ji. say something. Yeah, Dr. Anil, you would like to say something? I recognize your presence as well. Please say a few words. Anil Saab, are you online? Mr. Anil Jain, are you online? लगता है वो लाइन पे नहीं है. हाँ, चलो अंदर. ठीक है, Naresh ji, please. Good evening to all line friends. I, Dhanesh Desa, Zone Chairperson. It's a matter of pride for me to propose a vote of thanks for today's webinar. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our presiding officer, Dynamic Region Chairperson, Chartered Accountant Pawanji Agrawal, for organizing series of webinars and conducting today excellent webinar on You Are the Architect of Your Life. Thank you, Pawanji. It's my honor and privilege to acknowledge my heartfelt gratitude to guest of honor, Governor DG-elect Prasad Palwankar, Chief Guest, and also thanks for inaugurating today webinar and for encouragement. I would like to thank our distinguished keynote speaker of the day, Advocate Dr. S.C. Jain, for accepting our invitations and giving a highly informative talk on You Are the Architect of Your Life. आप स्वयं अपने जीवन के शिल्पी हैं. Sir, your excellent, thought-provoking informations addressing was full of wisdom, lot of takeaway. We all will be inspired with your examples positively. Ask, believe, and thanks to universe, and start actions towards your specific goal. Visualize, conscious choice, believe in universe, express gratitude to universe as and when possible. How to find hidden talent, increase type of giving more, unconditioned subconscious mind, low attraction is the key. Sir, excellent, and we all are grateful. Thank you. I would like to express our profound gratitude to guest of honor, first Vice District Governor-elect Sanjay Churi, second Vice District Governor-elect Jagannath Rao Hegde for their presence, participants, and good observations. Keep attitude for gratitude and many more takeaways. Sir, special thanks to all present Vice District Governor Kamlesh Dalal and Ravindra Kadel for their observations. District Governor Anil Jain, District 316B, and district dignitaries. Also, sir, thank you, CA Vimalji Punamia, for his presence. I would like to thank you today webinar coordinator Firoza for introductions of today's guest keynote speaker. I also would like to thank Lalisa and Vasansa for helping this webinar success. I thank each and everyone present here for taking out the precious time in attending today's webinar. Thank you all. Have a good day. Stay home. Stay safe. Thank you. पवन जी, नरेश का खास अभिनंदन मानो. नरेश का खास अभिनंदन. Definitely, sir. Definitely. Sir, I also believe कर्मा तेरे अच्छे, किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ है, तो घर में मथुरा काशी. I practice every day, and really I am success in my way very well. Thank you, Naresh. Thank you. So this was all in this webinar. Soon we will meet in our next webinar. Till then, take care and be positive. Thank you. Thank you. Yeah, Pawanji, looking Thank you forward very much, for next Pawanji. session. Bye. Eagerly. Thank you, everyone. Thank Thank you. Thank you. you. Have Thank a you. Thank you very much. Thank you, each and Bye. every person. God bless you, Pawanji. I am sorry. Thank you. Pawanji, thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Naresh, thank you. Thank you, Naresh. Thank you, Congrats. Pawanji. Well done. Very nice. Thank you. Thank you, Thank Naresh Very ji well, very and well. Pawan bhai. Great occasion. Good lecture. Thank you, beautiful. Thank Punima ji, you. thank you Very very good. much. Very good. Naresh and Firuza.
Thank you. Lalit, Hello, doctor. everyone. Hello. who were Hello. responsible for the you? success of Thank this you. webinar. Thank you. Thank you. Yeah, madam. Thank you. Pavanji, very enriching webinar. Thank you so very Kamlesh ji, much. we start 10 minutes back. Thank you very much. Very Come on, enriching. hearty congratulations. Thank you. You can also suggest me topic for the next webinar. Very Yes, very yes. educative. You can suggest me topic for the next webinar. USA definitely will suggest you. Yeah, please send me a WhatsApp on which topic you would like me to organize a webinar. Pakka, pakka. I will Same do Thank you, that. sir. topic. Thank you. That's my promise. The same topic, sir. Which Again, topic? it's again after some time. No, Let's have something new. be positive. Yes. So, sir, Prasad ji, can I end this meeting? Yes. Yes, please. Thank you very much. Thank you Bye. once again. Bye, Thank you, everyone. Naresh ji. Bye, everyone. Thank you. Bye, everyone.